Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, microorganisms. Introduction. The microbes or microorganisms are very tiny living organisms that can be seen only by using a microscope. The word micro means small. The branch of science that deals with the study of microorganisms is called microbiology. The microbes were seen for the first time in 1677 by Antony von Leeuwenhoek by a microscope invented by himself. These microbes are found in different sizes. The smaller ones are only a few microns or micrometers across. 1 micron is 1 millionth part of a meter. The longer ones can be seen by an ordinary microscope. Some multicellular microbes such as fungi, molds, mushrooms and algae can be seen with the naked eyes. They have been included in the microbial world because still many species of fungi and algae are microscopic. देखिए माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. माइक्रो, द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, राइट. वो ब्रांच ऑफ साइंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ डील करती है दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोब्स को सबसे पहले किसने देखा था? 1677 में देखा एंटनी वैन ल्यूवेनहूक ने, एक माइक्रोस्कोप से जिसे उन्होंने खुद ही इन्वेंट किया था. तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, डिफरेंट साइजेस में होते हैं. कुछ तो इतने छोटे होते हैं, जो स्मॉलर वन है वो होते हैं फ्यू माइक्रोन्स. और आपको पता है एक माइक्रोन जो है वो मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट होता है. आप सोचिए कितना छोटा है. और जो लॉन्गर होते हैं वो किसी भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से ऐसे देख सकते हैं. तो कुछ मल्टीसेल्युलर माइक्रोब्स हैं, जैसे कि अगर हम मोल्ड्स या मशरूम की बात करें, ये फंगी हैं. और कुछ एलगी है, उन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं. ओके, बट इनको माइक्रोबियल वर्ड में इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि इनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक है. Do you know Antony van Leeuwenhoek is known as father of microbiology? ओके, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही माइक्रोब्स को देखा था. 2.1 The habitat or natural home of microscope. Microbes are found almost everywhere around us. They are present in soil, water and air. Our body too contains a large number of microbes. They are also present in the bodies of plants and animals and the dead organic matter. अच्छा, अब ये माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह, एवरीवेयर, इंक्लूडिंग आवर बॉडी ऑल्सो. हमारी बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल, कहाँ नहीं पाए जाते, हर जगह पाए जाते हैं. इवन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में भी पाए जाते हैं. Every time we walk on the ground, we step on billions of microbes. We encounter them constantly but become aware of their presence through their action. For example, the microbes in the air grow on a piece of moist bread which can be seen in the form of greyish-white patches. This way, we become aware of their presence and use this growth of microbes as a medium for the culture of microorganism. देखिए, हर बार जब हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं ना, तो हम इतने सारे मतलब बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है ना, उनके ऊपर पैर रखते हुए चलते हैं, राइट. और हमें पता भी नहीं चल पाता है कि ये वहाँ पे प्रेजेंट है. अच्छा, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जैसे कि आपके एयर में ग्रो करते हैं, जैसे कि कभी मॉइस्ट ब्रेड में आप देखिएगा उसमें आपको ग्रेइश वाइट पैचेस नज़र आएंगे, है ना. तो ये क्या है आपका, ये माइक्रोब्स, उस पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है. और अगर जब हम अवेयर हो जाते हैं इनकी प्रेजेंस से, तो फिर हम इनको यूज़ करते हैं एज अ मीडियम for what? For the culture of microorganisms. Microbes flourish in almost all or any kind of environment. Hot springs, ice cold water with high salt content, sulfur, organic matter, desert soil or marshland. To do so, they form a hard coat called cyst. They remain inactive with its protective shell, and when favorable conditions return, microbes come out, multiply and repeat their life cycle. अच्छा देखिए, माइक्रोब्स हर तरह के इन्वायरमेंट में आपके फ्लॉरिश करते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट हो, आइस कोल्ड वाटर हो, हाई सॉल्ट कंटेंट हो, सल्फर हो, या राइट, या मार्शलैंड हो. तो ऐसा कैसे कर पाते हैं वो? एक्चुअली वो उनकी एक हार्ड कोट वो बनाते हैं जिसे कहते हैं सिस्ट. फिर वो इस प्रोटेक्टिव सेल के अंदर इनएक्टिव रहते हैं कब तक? जब तक कि उनकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो वापस नहीं आ जाते. ओके, इसके बाद माइक्रोब्स आते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को रिपीट करते हैं. On the basis of habitat, microbes are of 3 types. Number 1, free living microbes. Microbes living in air, water or soil are free living microbes.
Number 2, parasitic microbes. Microbes living inside plant or animal bodies are parasitic and obtain their food from the host. For example, malaria causing Plasmodium lives on female Anopheles mosquito and human blood. माइक्रोब्स जो प्लांट के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर रहते हैं या एनिमल बॉडी पे रहते हैं वो पैरासिटिक होते हैं और अपना खाना वो अपने होस्ट से ऑब्टेन करते हैं. जैसे मलेरिया कॉजिंग जो प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो में रहती है एंड ह्यूमन ब्लड पे. नंबर 3, symbiotic microbes. Microbes which live in a mutually beneficial relationship are called symbiotic microbes. For example, rhizobium is found in root nodules of legumes. Lichens is an example of algae and fungi living together. Its body is made up of an algal and fungal component, both involved in an intimate symbiotic relationship. Cellulose digesting microbes live in the rumen of ruminating animals, cow, sheep, goat, giraffe, etc. This is called ruminant symbiosis. अच्छा देखिए, माइक्रोब जो है आपके एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में भी रहते हैं जिसे कहते हैं सिम्बायोसिस. तो ऐसे सिम्बायोटिक आपके माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि राइजोबियम है वो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, राइट. लाइकेन आपका एग्जांपल है जिसमें एल्गी एंड फंगी साथ में रहते हैं. ओके, इनकी जो बॉडी होती है वो एल्गल और फंगल कंपोनेंट से बनी होती है और दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं. ओके, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स जो आपके रूमिनेंट एनिमल्स के रूमेन में रहते हैं उन्हें कहा जाता है रूमिनेंट सिम्बायोसिस. 2.2 major groups of microbes. Microbes are classified into 5 categories according to their characteristics. In the order of gradual evolution in body organization, they are viruses, bacteria, fungi, algae, and protozoa. So these are the 5 groups of microorganisms. Some characteristics of different microbes. चलिए अब इन माइक्रोब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. नंबर 1 है आपका वायरसेस एंड सिंगल इज वायरस. नंबर ऑफ सेल्स, इसका कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है एंड साइज देखिए इसका कितना है 0.015 से लेके 0.275 माइक्रोन. ओके, नेक्स्ट बैक्टीरिया, सिंगुलर फॉर्म इज बैक्टीरियम. Number of cells, unicellular. Unicellular means it is made up of only one cell, right? And इसका size 0.2 to 100 microns. Next one is fungi, singular fungus. Number of cells, unicellular और multicellular. ये one cell से बना हो सकता है या बहुत सारे cells से भी बना हो सकता है. And इसका size range है 2 to 10 microns. Next, algae, singular alga. Number of cells, mostly ये मल्टी सेलुलर होते हैं एंड इनका जो साइज़ है वो 1 माइक्रोन से 7 मीटर्स तक आपका होता है. नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ, सिंगुलर प्रोटोजोन एंड नोज. इसका भी कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता एंड इसका साइज जो है साइज रेंज इट्स 2 to 200 माइक्रोन्स. A virus is a biological agent that reproduces inside living cells of other organisms. Viruses are not classified in any kingdom as they are not really alive. Bacteria, fungi and algae are included in plant kingdom, whereas protozoa are a part of animal kingdom. The mode of nutrition in these microorganisms is either autotrophic or heterotrophic. Most of the algae and protozoa like Euglena possess chlorophyll and make their own food. Thus these are autotrophic. Certain protozoa, fungi and bacteria are heterotrophic as they obtain their food from dead decaying organic matter. Some other microorganisms obtain their food from other living beings, thus they are parasites. Okay, अब वायरस आपका ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि लिविंग सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है. तो वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं क्लासिफाई किया गया, ना तो प्लांट किंगडम में ना ही एनिमल किंगडम में, क्योंकि एक्चुअली में रियल में अलाइव होते ही नहीं. अगर हम बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गे की बात करें तो इन्हें प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया गया है एंड प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में. तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक दोनों ही होता है, राइट. किसी में होगा ऑटोट्रॉपिक, किसी में हीटरोट्रॉपिक. जैसे ज़्यादातर एल्गी एंड प्रोटोजोआ है लाइक यूग्लिना, इनमें क्लोरोफिल होता है. तो क्लोरोफिल होता है दैट मीन्स से अपना खाना खुद से बना सकते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉपिक. बहुत सारे आपके प्रोटोजोआ, फंगी और बैक्टीरिया हीटरोट्रॉपिक होते हैं और ये अपना खाना ऑब्टेन करते हैं डेड डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर से. जबकि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग बींग से अपना खाना लेते हैं, तो ये होते हैं पैरासाइट्स. 2.3 वायरसेस.
The Latin word virus means liquid poison. They are the smallest of all microorganisms. They cannot be seen even with the most powerful microscope working on light. They can be observed, not seen. With an electron microscope indirectly, it is not clear whether we should call them living or non-living because they do not grow on their own. They are non-cellular structures. They can survive and multiply only inside another host organism, plant or animal cells. They are found in virtually every ecosystem on the earth. These minute life forms are thought to be the most abundant type of biological entity. वायरस का मतलब जो है ना लैटिन में होता है लिक्विड पॉइजन. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे होते हैं. इनको जो मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है ना उससे भी नहीं देखा जा सकता. तो इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता एक हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, वो भी इनडायरेक्टली. तो ये आज तक क्लियर नहीं है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है क्योंकि वो अपने आप से ग्रो नहीं करते. ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर इनका होता है. ये सर्वाइव करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं जब ये किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं, राइट मतलब प्लांट है या एनिमल सेल में जाते हैं. और ये आपके जो हर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं अर्थ के, ये माइन्यूट लाइफ फॉर्म्स है और मतलब ये सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है. द 4 मेजर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ वायरस आर रॉड शेप्ड, polygonal, spherical or cubical. But their names have been derived from the respective host or diseases they cause. इनका जो structural form है 4 टाइप का है, लेकिन ये जो नाम है ना इनको कहाँ से डिराइव किया गया है, मतलब जिस भी होस्ट की बॉडी में वो डिसीज करते हैं उसके बाद ये नाम आया है. फॉर एग्जाम्पल TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस कॉज फुट एंड माउथ डिसीज इन कैटल. जैसे TMV जो है उसकी वजह से आपके कैटल में फुट एंड माउथ डिसीज होता है. द मीजल वायरस कॉजेज मीजल्स इन ह्यूमन. फ्लू वायरस कॉजेज फ्लू और वायरल फीवर. HIV human immunodeficiency virus causes the fatal disease AIDS, acquired immunodeficiency syndrome in humans. तो देखिए इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे कि आपका जो मीजल वायरस है उसकी वजह से मीजल्स होता है, फ्लू वायरस की वजह से वायरल फीवर या फ्लू होता है, HIV से एड्स जैसी बीमारी होती है, राइट. To reproduce themselves, the viruses completely depend on their host cells. As they grow in number, the host cell eventually bursts. A virus that uses the bacteria as a host is known as a bacteriophage, bacteria eater. Viruses do not have any cytoplasm, nucleus or cell membrane but have genetic material, nucleic acids. There is a core of nucleic acid, RNA, ribonucleic acid or DNA, deoxyribonucleic acid, which is surrounded by a sheath of protein called capsid. अच्छा देखिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जो वायरसेस हैं वो होस्ट सेल पे डिपेंडेंट होते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि ये होस्ट सेल में ही ग्रो करते हैं एंड इवेंचुअली फिर बर्स्ट हो जाते हैं. तो वायरस जो बैक्टीरिया का यूज़ करता है एज अ होस्ट उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया ईटर. बैक्टीरिया का कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, बट इनमें होता है जेनेटिक मटीरियल विच इज़ न्यूक्लिक एसिड. यानी कि इनमें RNA और DNA होता है जो कि सराउंडेड होता है एक शीट ऑफ प्रोटीन से जिसे कहते हैं कैप्सिड. कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नंबर 1, they have genetic material. Number 2, they grow and multiply but only inside another living being. Characteristics that makes viruses non-living organism. A, they do not have any cytoplasm, nucleus or cell membrane. B, they can be crystallized like non-living things. C, outside a living system the virus can neither respire nor reproduce. अब देखिए इनको दोनों ही कैटेगरीज में रखा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग में. अब लिविंग इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जेनेटिक मटीरियल होता है और ये जब किसी लिविंग सेल के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. और नॉन लिविंग इनको इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ना तो इनका साइटोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियस है, ना ही सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं जैसे कि नॉन लिविंग थिंग होते हैं. और लिविंग सिस्टम के आउटसाइड जो वायरस है ना वो रेस्पायर कर सकता है ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. 2.4 बैक्टीरिया. In 1676, a Dutch merchant and lens maker Antony van Leeuwenhoek observed bacteria for the first time and called them
animalcules. In 1838, German scientist Christian Gottfried Ehrenberg coined the term bacteria. Bacteria are the simplest and most abundant of all the microbes. They are unicellular prokaryote microorganisms. Their sizes vary from 0.2 to 100 microns. They exist as single cells or as a chain or group of cells. The cells possess a hard cell wall. Many of them possess cilia and flagella to help them move. देखिए, सबसे पहले ये जो एक आपका नाम मैंने बताया था जिन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, उन्होंने इनको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स, राइट. फिर 1838 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया बैक्टीरिया, राइट. बैक्टीरिया सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट है अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो. ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इनका साइज जो है वो वेरी करता है आपका, राइट, इतने से. ये सिंगल सेल में एग्जिस्ट करते हैं या फिर एज अ चेन या ग्रुप ऑफ सेल्स में. तो सेल जो है एक हार्ड सेल वॉल पोजेस करता है और ज़्यादातर में सिलिया या फ्लैगेला होता है जिनको मूव करने में हेल्प करते हैं. सेल स्ट्रक्चर. अ रिजिड सेल वॉल इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीनिश covering called the capsule. Nuclear material in a bacterium is not bound by a nuclear membrane but is found scattered in the cytoplasm. It has flagella which are thread-like structures that help in movement. अच्छा देखिए, एक रिजिड सेल वॉल होती है जो सराउंडेड होती है एक प्रोटीनिशियस कवरिंग से जिसे कहा जाता है कैप्सूल. जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है बैक्टीरियम का वो बाउंड नहीं होता किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बट ये साइटोप्लाज्म में ना स्कैटर्ड होता है. इसके पास फ्लैगेला होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलोज. नंबर 1, कोकस और स्फेरिकल शेप्ड. The spherical form occurs either singly, in groups of 2, in long chains or in bunches. तो पहली शेप है आपकी कोकस या फिर स्फेरिकल शेप्ड, यानी कि जो स्फेरिकल फॉर्म में होता है. नंबर 2, बैसिलस और रॉड लाइक शेप. बैसिलस में अकर सिंगली और फॉर्म अ फिलामेंट. नंबर 3, स्पाइरलम और स्पाइरल शेप. These are spiral in appearance with 2 or more twists. They have mostly flagella at both ends. अच्छा, ये जो स्पाइरल शेप में होते हैं आपके, इसमें आपके 2 या ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं, राइट. Number 4, vibrioform or comma shaped. These are comma shaped in appearance with less than 1 twist. These also have flagella. अब ये comma shaped, आपको पता है comma का कैसे शेप होता है, उस शेप में होते हैं अपीयरेंस में और इसमें लेस देन 1 ट्विस्ट होता है और इनके पास भी फ्लैगेला होता है. Nutrition. Most bacteria lack chlorophyll and so are unable to synthesize organic compounds which they need as food from simple inorganic substance. They depend on external sources. Hence, most bacteria are heterotrophic. They live in places where organic food is readily available, either from living organism or their dead remains and waste product. The former are called parasites, while the latter are called saprophytes. ज़्यादातर बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, राइट. तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं. तो दैट मीन्स ये ज़्यादातर आपकी हीटरोट्रॉपिक होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. तो ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे रेडिली अवेलेबल ऑर्गेनिक फूड होता है, ठीक है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर डेड रिमेन से वेस्ट प्रोडक्ट से अपना खाना लेते हैं. तो जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं वो आपके पैरासाइट्स होते हैं, जबकि जो डेड ऑर्गेनिजम्स से या डेड रिमेन से वेस्ट प्रोडक्ट से लेते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोफाइट्स. Growth and respiration. For their growth, some bacteria show aerobic respiration as they respire in the presence of oxygen, while others show anaerobic respiration because they respire in the absence of oxygen. तो देखिए, कुछ बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं यानी कि रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कुछ ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं. रिप्रोडक्शन. Bacteria normally reproduce, multiply by binary fission under favorable conditions. During binary fission, the body of a fully grown bacteria cell elongates and a cross transverse wall is developed, dividing it into 2. The 2 daughter cells separate and redivide after maturity. They generally reproduce very fast. For example, Pseudomonas reproduce itself every 9.5 minutes. E. coli, the most common bacteria used for scientific research,
divides every 20 minutes. Doubling every 20 minutes leads to production of 2 raised to the power 72 or 8 raised to the power 24 or 4.7 into 10 raised to the power 21 bacteria in 24 hours. However, some bacteria grow very slow, such as those that cause tuberculosis and leprosy. अच्छा, बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली आपका रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन से, ओके जब कभी भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। तो बाइनरी फिशन जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्या होता है इसमें कि जो बॉडी होती है फुली ग्रोन बैक्टीरिया सेल की वो एलोंगेट हो जाती है और एक क्रॉस वॉल डेवलप होता है जिसकी वजह से 2 में डिवाइड हो जाता है। फिर 2 डॉटर सेल आपके सेपरेट होते हैं और फिर रीडिवाइड हो जाते हैं आफ्टर मैच्योरिटी। तो ये जनरली ना बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे सूडोमोनास की बात करें तो ये हर 9.5 मिनट्स में रिप्रोड्यूस करते हैं। ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसको ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है वो यूज़ करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो ये हर 20 मिनट में डिवाइड होता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत स्लो आपके ग्रो करते हैं, जैसे कि जिनकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस या फिर लेप्रेसी होता है। हाउ इज कर्ड फॉर्म? The anaerobic bacteria Lactobacillus helps in making curd. When some curd is mixed well in warm milk at 37 degrees Celsius, they start growing and multiplying using the non-fat components of milk. The little curd that is added has bacterial Lactobacillus acidophilus. The acidic products of this reaction begin to curdle and thicken the milk. After formation of curd, it is put in a cooler place to reduce further growth of bacteria. Otherwise, the bacteria would make it sour by excessive production of acid. Hot milk kills the microorganisms. Also, they cannot grow in cold milk. In both cases, the curd formation does not occur properly. देखिए कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? इस बैक्टीरिया के हेल्प से, विच इज नोन एज लैक्टोबैसिलस। तो जब कभी भी हम कर्ड यानी दही बनाते हैं तो हम थोड़ा सा जो कर्ड है उसको मिक्स करते हैं वार्म मिल्क में। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करना और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो जो थोड़ा सा दही हमने ऐड किया था ना, उसमें बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी होते हैं इस रिएक्शन के, उसकी वजह से मिल्क कर्डल होना शुरू हो जाता है, थिक होना आपका शुरू हो जाता है। और जैसे ही दही जमता है उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे किसी ठंडे प्लेस पे रख देते हैं ताकि जो फर्दर ग्रोथ है वो बैक्टीरिया की ना हो सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप उसको कूलर प्लेस पे नहीं रखेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करेगा एसिड का, जिसकी वजह से और बहुत ज़्यादा सावर यानी खट्टी हो जाएगी। हॉट मिल्क जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और ना ही ये कोल्ड मिल्क में ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए दोनों ही केसेस में, यानी अगर हॉट मिल्क है या आपका कोल्ड मिल्क है, तो कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा प्रॉपरली। Useful actions of bacteria. Bacteria help in making milk products such as curd and cheese. Bacteria play an important role in wastewater treatment. Some bacteria like Rhizobium in root nodules of legumes and Azotobacter soil bacteria convert nitrogen from the air into nitrogenous compounds and help to fertilize the soil. Bacteria present in the intestine of ruminant animals such as cow help in digesting the cellulose of plants. Thus, these animals can use grass as their staple food. अच्छा देखिए, बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, कर्ड या फिर चीज़। इसके अलावा इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपके रूट नोड्यूल्स में रहता है एंड आपका एक सॉइल बैक्टीरिया है एज़ोटोबैक्टर, ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, है ना। और जो बैक्टीरिया र्यूमिनेंट एनिमल के इंटेस्टाइन में होता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Some bacteria release nitrogen from decaying plants and animals and help to sustain the nitrogen cycle. Some bacteria decompose organic matter to produce nutrients and release large amounts of carbon dioxide to be used by green plants. Some bacteria promote the process of leather tanning. Bacteria like Acidobacter oxidize ethanol to acetic acid and thus help in the production of vinegar, wines and fruit juices. अच्छा, कुछ जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं डीकिंग प्लांट्स एंड एनिमल से, ओके। और कुछ बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, फिर वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, राइट। कुछ बैक्टीरिया जो है लेदर टैनिंग के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, और एक बैक्टीरिया जिसे कहते हैं एसिटोबैक्टर, ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है एसिटिक एसिड में,
जिससे कि विनेगर, वाइन्स और फ्रूट जूस के प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। सम बैक्टीरिया स्पॉइल फूड एंड अदर थिंग्स। Botulism is serious food poisoning caused by bacteria Clostridium. These bacteria generally grow in improperly preserved and processed food. Some bacteria produce highly poisonous substances called toxins which cause disease in living tissues. Souring of milk and putrefaction of meat is caused due to the action of bacteria. अच्छा देखिए, अब इन बैक्टीरियाज की वजह से ह्यूमन्स, एनिमल्स में, प्लांट में बीमारियाँ हो जाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो बॉटुलिज्म एक सीरियस फूड पॉइजनिंग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। ओके, तो ये जनरली आपके उन फूड पे ग्रो करते हैं जो आपके इम्प्रॉपरली प्रिजर्व्ड होते हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हाईली पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें टॉक्सिन कहते हैं, जिसकी वजह से लिविंग टिश्यूज़ में बीमारी हो जाती है। जैसे मिल्क आपका फट जाता है, ख़राब हो जाता है ना, सावरिंग होता है या प्यूट्रिफेक्शन होता है मीट का, वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। 2.5 फंगी। Fungi are those microbes which lack chlorophyll, so they cannot prepare their own food. They depend on other plants and animals for food. Some fungi are saprozoic, which rely on dead and decaying organic matter for their survival, while some are parasitic, which grow on other living bodies. Blue-green patch on a rotting orange, greyish-white patch on stale bread, pickles or jams, and greenish patch on damp clothes, old shoe and moist tree trunks are made of different types of fungi. Beautiful mushrooms growing in monsoon are also fungi. देखिए, फंगी आपके वो माइक्रोब्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दैट मीन्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो ये प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। कुछ फंगी आपके सेप्रोजोइक होते हैं, यानी कि ये डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, जबकि कुछ पैरासिटिक होते हैं, यानी कि जो दूसरे लिविंग बॉडीज़ पे ग्रो करते हैं। ब्लू ग्रीन पैच आपकी या किसी आप ना रॉटिंग ऑरेंज पे देखना, या जो ग्रेइश वाइट पैच होता है किसी स्टेल बासी ब्रेड पे, पिकल्स या जैम्स पे, या ग्रीनिश पैच जो आपको डैम्प गीले कपड़ों पे मिले, ओल्ड शू या मॉइस्ट ट्री ट्रंक्स पे, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंगी होते हैं आपके। और यहाँ तक कि आपको मालूम है मशरूम जो आप खाते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ फंगस। सेल स्ट्रक्चर। Fungi are eukaryotes and have a complex cellular structure. Most fungi have tubular thread or filament-like structure. They are both unicellular and multicellular. They consist of two main group of organisms, yeast and molds. देखिए, fungi आपके यूकारियोट्स होते हैं, इनका कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और ज़्यादा जो फंगी होता है इनमें ट्यूबुलर थ्रेड्स या फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो दो मेन ग्रुप्स जो ऑर्गेनिज्म के हैं इसके, वो है आपके यीस्ट एंड मोल्ड्स। Yeast are usually unicellular, while molds are multicellular and have a filament-like appearance. Field mushrooms are also a type of mold. Yeast आपके unicellular होते हैं, जबकि जो molds हैं वो multicellular होते हैं। अब आपका जो field mushroom होता है वो भी आपका एक type of mold है। Yeast can survive in both aerobic and anaerobic conditions, but molds are aerobic. अब आपके यीस्ट की बात करें तो वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस में आपका सर्वाइव कर जाता है, जबकि मोल्ड्स जो हैं आपके वो एरोबिक कंडीशंस में ही आपके सर्वाइव करता है। यीस्ट रेंज इन साइज फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोन्स एंड मोल्ड्स फ्रॉम 2 to 10 माइक्रोन्स। सम मोल्ड्स सच एज मशरूम आर इवन many centimeters long. देखिए, साइज रेंज आपको दिया गया यीस्ट का एंड मोल्ड्स का, जबकि मशरूम की बात करें तो ये कई सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। न्यूट्रिशन इन फंगी। Like plant cells, fungi also possess cell walls, but they cannot perform photosynthesis as they are heterotrophic. Some fungi are parasites who obtain food from living organisms. Such fungi are saprophytes who obtain food from dead organic matter. Okay, अब क्यों प्लांट सेल की बात, प्लांट सेल में जैसे होता है तो फंगी में भी सेल वॉल्स होते हैं, बट वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए वो हेटरोट्रॉपिक है। कुछ फंगी आपके पैरासाइट्स होते हैं, कुछ आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स यानी जो अपना खाना डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं।
Reproduction in fungi. Under conditions not favoring them, fungi reproduce sexually. Under favorable conditions, they reproduce asexually by binary fission, budding, regeneration from fragments, and spores formation. In both sexual and asexual reproduction, fungi produce spores that separate from the parent organism by either floating on the wind or hitching a ride on an animal. Fungal spores are smaller and higher than plant seeds. The giant puffball mushroom bursts open and releases trillions of spores. This huge number of spores released increase the likelihood of landing in an environment that will support growth. अच्छा देखिए, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती ना तो फंगी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय दीज मेथड्स. ओके, अब दोनों ही रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फंगी जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाता है, या तो वो फ्लोट करता है विंड पे या बाय हिचिंग अ राइड ऑन एन एनिमल. तो जो फंगल स्पोर्स है आपके वो स्मॉलर होते हैं और हायर होते हैं प्लांट सीड से. अच्छा, जो मशरूम का जो जॉइंट पफबॉल मशरूम होता है ना, जब वो बर्स्ट होता है ना, जब वो ओपन होता है तो उसमें ट्रिलियन ऑफ स्पोर्स आपके रिलीज हो जाते हैं. फिर ये जो नंबर ऑफ स्पोर्स हैं ये आपके रिलीज हो जाते हैं जिससे कि किसी इन्वायरमेंट पे लैंड करेंगे जहाँ पे इनकी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा. राइट. रेस्पिरेशन इन फंगी. मोल्ड्स आर एरोबिक while yeast are both aerobic and anaerobic. During an aerobic respiration, yeast produce alcohol and carbon dioxide. This property is used for fermentation of molasses to make wine and fermentation of flour to make bread. तो देखिए, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यीस्ट प्रोड्यूस करता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस प्रॉपर्टी को फिर यूज़ किया जाता है मोलासेस के फर्मेंटेशन के लिए जिससे कि वाइन बनती है, या फिर फ्लोर के फर्मेंटेशन के लिए जिससे कि ब्रेड बनती है. Do you know fungi may grow on clothes and shoes during rainy season? You may see grayish, blackish patches on these items. ठीक है, रेनी सीजन में जो फंगी होता है ना क्लोथ्स या शूज़ पे भी ग्रो करती है, तो आपको जैसे वो ग्रेइश या ब्लैकिश पैचेस नजर आएंगे, दैट मीन्स वो फंगस है. यूज ऑफ फंगी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. A little of yeast together with some sugar and warm water is mixed with fine flour. Soon the dough begins to rise. The presence of sugar and warmth lead to rapid growth of the yeast cells. During their reproduction and respiration, yeast cells produce carbon dioxide. Bubbles of carbon dioxide fill the dough and make it rise. When baked into a loaf, the bread becomes spongy. Thus, the action of yeast helps the bread to become soft and fluffy. For making idli or dosa, the wet mixture of ground rice and dal is first allowed to stand for a few hours. This mixture rises and after some time begins to get sour because of the growth of yeast cells. Here, the yeast comes from the air. देखिए, थोड़ी सी yeast को अगर हम शुगर और वार्म वाटर के साथ मिक्स करेंगे और उसको फिर फाइन फ्लावर में यूज़ करेंगे तो जो डो होगा वो राइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो शुगर और जो वार्म की वजह से yeast सेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगी. और जब उनका रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन होगा तो ये सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. फिर जो बबल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को वो डो को फिल करेंगे और जिसकी वजह से वो राइज हो जाएगा. तो जब लोफ को बेक किया जाता है ना तो ब्रेड काफ़ी स्पॉन्जी हो जाती है. तो इसकी वजह से यीस्ट के एक्शन की वजह से जो ब्रेड है सॉफ्ट और फ्लफी हो जाती है. जैसे इडली डोसा हम बनाते हैं, है ना, तो जो वेट मिक्सचर होता है राइस और दाल का, उसको पहले कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, है ना, और उसके बाद ये जो मिक्सचर है थोड़े टाइम के बाद ना थोड़ा सा राइज हो जाता है और थोड़ा खट्टा होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब यीस्ट सेल इसमें इंक्रीज हो चुके हैं, वो ग्रो करना शुरू कर दिए. तो ये जो यीस्ट है हमने इसे ऐड नहीं किया, ये कहाँ से आया? ये एयर से आया है. यूजफुल एक्शंस ऑफ फंगी. Yeast is a fungus which respires under anaerobic conditions in fruit juice and changes it into alcohol by acting on sugar. This process of conversion of sugar into alcohol by yeast is called fermentation. Tiny latent carbon dioxide bubbles are given out in the process. Certain fungi such as mushrooms are edible. Fungi decompose organic matter, thus helping in the recycle of nutrients. Antibiotics are extracted from fungi. Example, penicillin is extracted from
Penicillium notatum. Yeast is also used to produce vitamin B. अब देखिए फंगस किस तरह से हम लोगों के लिए हेल्पफुल है. यीस्ट आपका फंगस है जो कि इनऑरोबिक कंडीशन में रिस्पायर करता है फ्रूट जूस में, फिर उसको अल्कोहल में चेंज करता है बाय एक्टिंग ऑन शुगर. तो जो प्रोसेस है जिसमें शुगर आपका अल्कोहल में चेंज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट, उसे कहा जाता है फर्मेंटेशन, राइट. और बहुत सारे फंगी आपके जैसे कि मशरूम, ये आपके एडिबल होते हैं. फंगी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल हो जाता है. एंटीबायोटिक्स को फंगी में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जैसे कि पेनिसिलियम, ये आपका पेनिसिलियम नोटेटम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसके अलावा यीस्ट को विटामिन बी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. हार्मफुल एक्शंस ऑफ फंगी. अब देखते हैं कि किस तरह से फंगी हार्मफुल है. Because of fermentation and releasing of toxins, fungi spoil food and damage potato and crop plant, corn and wheat. They also cause rotting of cloths, shoes and wooden materials. Some fungi cause diseases such as athlete's foot and ringworm. Fungi cause harm to articles made of leather, wood and cloth. देखिए फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है कि फंगी फूड को स्पॉइल कर देते हैं, पोटैटो को और हमारी क्रॉप को जैसे कॉर्न या वीट को, इसको खराब कर देते हैं. इनकी वजह से देखिए कपड़े जो रॉटिंग होती है क्लोथ्स की, शूज़ की, वुडन मटेरियल की होती है. कुछ की वजह से बीमारी भी हो जाती है जैसे रिंगवर्म या एथलीट फूड. और जैसे कोई भी चीज़ जो लेदर, वुड या क्लोथ से बनी होती है उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं. 2.6 algae. A greenish layer is seen on the surface or side of stagnant water. This layer contains algae, which are simple microbes that contain chlorophyll and can make their own food. Most of the algae are multicellular and large enough to be seen with naked eyes. Still, many algae are microscopic, therefore they are included in the microbial world. The sizes of algae range from microscopic unicellular from 1 microbe to large seaweeds measuring several meters. The single-cell algae may be spherical, rod-like, club or spindle-shaped, while multicellular algae have more complex structures. देखिए कभी भी ना स्टैग्नेंट वाटर होगा, स्टैग्नेंट वाटर यानी स्टैंडिंग वाटर, उस पर आपको एक ग्रीनिश लेयर नजर आएगी. तो ये लेयर एक्चुअली इसमें एल्गे होता है जो आपके सिंपल माइक्रोब्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और अपना खाना खुद से बना सकते हैं. तो ज़्यादातर आपके एल्गे जो मल्टी सेलुलर होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं. हालांकि बहुत सारी ऐसी एल्गे भी है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो इसीलिए इनको माइक्रोबियल वर्ड में इंक्लूड किया गया है. अच्छा, अब जैसे बात करें सिंगल सेल एल्गी जो होते हैं वो आपके डिफरेंट शेप्स में होती हैं लाइक स्फेरिकल, रॉड, क्लब और स्पिंडल शेप, जबकि मल्टी सेलुलर एल्गी उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं. सेल स्ट्रक्चर. Some algae form colonies consisting of identical cells that cling together after division. Other colonies may consist of several kinds of cells, each specializing in a particular function. Some algae can even move through water with the help of flagella. Many algae possess red, brown or green pigments. Based on the pigments present, they are classified as green algae, brown algae, red algae, blue-green algae or golden brown algae. अच्छा, जो एल्गीज होते हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं जिसमें आइडेंटिकल यानी कि सेम सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्लिंग हो जाते हैं डिवीजन के बाद. जो दूसरी कॉलोनीज होते हैं उसमें आपके सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन में. कुछ एल्गी को आप देखेंगे वाटर में मूव करता है फ्लैगेला की हेल्प से, और बहुत सारे एल्गी में ना पिगमेंट्स होते हैं रेड, ब्राउन या ग्रीन पिगमेंट्स, और इन पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से इनको क्लासीफाई किया गया इनकी जो इस तरह का इनका पिगमेंट होता है उसी नाम पे. ग्रीन एल्गी. स्पायरोगायरा इज अ वैरायटी ऑफ ग्रीन एल्गी, रिमेंबर दैट. Other varieties of green algae are Chlamydomonas, wallbox, Chlorella, etc. A cell wall is present in the cell and chloroplast are also seen. The chloroplast has chlorophyll which helps in photosynthesis. अच्छा, जिन एल्गी में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है वो आपके ग्रीन एल्गी है, जैसे स्पायरोगायरा की बात करें या फिर आपकी क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स, क्लोरेला. एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है. अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट, और इसलिए अपना खाना ये खुद से बनाते हैं. Brown algae. They are mostly seaweeds which are found in oceans. They have chlorophyll masked by brown pigment.
Kelps and rags are examples of brown algae. अच्छा देखिए, ये आपके मोस्टली सी वीड्स होते हैं जो कि आपके ओशन में पाए जाते हैं. इनमें क्लोरोफिल होता है विच इज़ मास्क्ड बाय ब्राउन पिगमेंट. इसके एग्जाम्पल्स आपके kelp and rags. Golden brown algae, they are diatomic. They are one of the most common types of phytoplankton found in both marine and freshwater. Most such algae are unicellular, although they may exist as colonies in the shape of filaments as ribbons, zigzags, or stellate colonies. A characteristic feature of diatomic cells is that they are encased within a unique cell wall made of silica. अच्छा, ये जो गोल्डन ब्राउन एल्गा होते हैं डायटोमिक होते हैं, ओके. और ये जो कॉमन टाइप्स ऑफ फाइटो प्लैंक्टन्स हैं उनमें से एक है जो कि आपके मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं. ऐसी एल्गीज होती हैं जो ज़्यादातर यूनिसेल्युलर होती हैं, हालांकि इनमें से कुछ कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट करती हैं फिलामेंट्स की शेप में एज रिबन या जिगजैग, राइट. तो इनका एक फीचर है इन डायटोमिक सेल्स का कि ये इनकेस्ड होते हैं एक यूनिक सेल वॉल जो कि बना होता है सिलिका से. रेड एल्गी. The red algae or Rhodophyta are one of the oldest groups of eukaryotic algae. They are mostly multicellular marine algae and include many notable types of seaweeds. Red algae या फिर इसको क्या कहते हैं Rhodophyta, ये oldest group of eukaryotic algae है और ये mostly आपके multicellular marine algae होते हैं. Nutrition in algae. Algae are plant-like organisms which contain chlorophyll. They make their own food by photosynthesis and tend to grow on wet surfaces. आप देखिए क्योंकि algae आपके plant-like organism होते हैं, इनमें chlorophyll भी होता है, तो अपना खाना खुद से बनाते हैं. Reproduction in algae. Reproduction in algae takes place mostly by fragmentation, vegetative reproduction. They also reproduce asexually through spore formation. During sexual reproduction, gametes are produced. अब रिप्रोडक्शन इनमें मोस्टली होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन में, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. यूजेस ऑफ एल्गी. Algae, being the producer of aquatic environment, provide food to aquatic animals. Algae cell extracts are used in many commercial products. Agar and allergenic acid are used to prepare medicines, food and cosmetics, as well as in paper manufacturing, fabric printing, and paint thickening products. Kelp, which is a brown alga, is a rich source of iodine and potassium. Many seaweeds are used as food in China and Japan. Some algae are increasingly being used as a source of food for human consumption. An antibiotic, chlorelin, is obtained from the alga chlorella. Blue-green algae like nostoc are able to fix nitrogen in the form of nitrates and thus increase soil fertility. About 50% of total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. Algae जो है आपका, ये बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है. एल्गी जो सेल एक्सट्रैक्ट आपके बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे अगर या एलर्जेनिक एसिड, इनको मेडिसिन, फूड और कॉस्मेटिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. केल्प जो कि आपका एक ब्राउन एल्गा है, ये रिच सोर्स है आयोडीन एंड पोटेशियम का. बहुत सारे सीवीड्स को एज अ फूड यूज़ किया जाता है चाइना एंड जापान में, और बहुत सारे एल्गे को इंक्रीजिंगली यूज़ किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ फूड ह्यूमन कंजप्शन के लिए. एक एंटीबायोटिक होता है क्लोरेलिन, ये आपका ऑब्टेन होता है एल्गा से जिसका नाम है क्लोरेला. ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे कि आपका है नोस्टॉक, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. एंड आपको पता है आपका जो 50% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थ में, वो एल्गे ही करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. 2.7 प्रोटोजोआ. Protozoa are unicellular microorganisms. They do not possess a cell wall. Their sizes range from 2 to 200 microns. They may have a very simple or highly complex forms. An amoeba does not possess a definite form and can change its shape. On the other hand, Paramecium is slipper-shaped and possesses a mouth, cilia, and other structures. Most of the protozoa are microscopic, but some, like Paramecium, are visible to the naked eye. Protozoa are found in moist habitats such as sea,
soil, and fresh water. Free living protozoa are found in polar regions and on very high mountains. An amoeba is the simplest and most common of all protozoa. प्रोटोजोआ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका कोई सेल वॉल नहीं होता है एंड इनका साइज जो है वो होता है आपका फ्रॉम 2 to 200 माइक्रोन्स. ये बहुत सिंपल भी हो सकते हैं या हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं. जैसे अमीबा की अगर हम बात करें, इसका कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होता और अपनी शेप को ही चेंज करता रहता है. जबकि पैरामीशियम स्लिपर शेप का होता है, इसका माउथ, सिलिया और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. तो ज़्यादातर प्रोटोजोआ आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट कुछ को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, जैसे कि पैरामीशियम. ये आपके मॉइस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं. और अमीबा जो आपका सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन है आपके सभी प्रोटोजोआ में, राइट. लोकोमोशन. Protozoa move by using pseudopodia, cilia or flagella. Amoeba moves with the help of pseudopodia in water. Paramecium swims with the help of cilia covering over its body. Trypanosoma moves with the help of flagellum. देखिए, जो प्रोटोज़ोआ है वो सूडोपोडिया का यूज़ करता है, मूव करता है सूडोपोडिया की हेल्प से, सिलिया फ्लैगेला की हेल्प से. अमीबा सूडोपोडिया की हेल्प से करता है. ओके. पैरामीशियम जो है सिलिया की हेल्प से स्विम करता है, ओके, और अपनी बॉडी को कवर करता है. एंड ट्राइपैनोसोमा जो है वो फ्लैगेलम की हेल्प से मूव करता है. न्यूट्रिशन. प्रोटोजोआ हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. Euglena possess chlorophyll and can manufacture its own food. Rest of the protozoa either are parasitic or saprozoic, as they depend on other living organisms and feed on dead organisms. Respiration and exertion in protozoa through general surface of the soil. अच्छा, प्रोटोजोआ के ना डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है. जैसे यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है तो अपना खाना वो खुद से बनाता है. बाकी जो प्रोटोजोआ के आपके या तो पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोजोइक होते हैं, यानी कि वो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स से वो अपना खाना डिराइव करते हैं. रिप्रोडक्शन. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस प्रोटोजोआ multiply by binary fission. During unfavorable conditions, cyst is formed. Parasitic forms like Antamoeba infect through cyst. Sexual reproduction is rare and noticed in Paramecium, Plasmodium, etc. देखिए, जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं प्रोटोजोआ मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिशन से, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो सिस्ट बना लेता है. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेयर होता है, बट ये नोटिस किया जा सकता है पैरामीशियम या फिर प्लास्मोडियम में. यूजफुल एक्शंस ऑफ प्रोटोजोआ. तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ किस तरह से हेल्पफुल होते हैं. नंबर 1, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी. प्रोटोजोआ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. By eating bacteria, they enhance the rate at which bacteria decompose dead organic matter. Protozoa are the ultimate decomposers in nature, as they feed on bacteria and fungi which decompose dead organic matter. Thus, they are useful in treatment of sewage. Number 2, link in food chain. Some free-living protozoa like zooplankton are primary consumers in an aquatic food plant. They feed on algae and are in turn eaten by bigger animals. देखिए, जो प्रोटोजोआ है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ईट करते हैं. तो क्या करते हैं, ये इन्हांस कर देते हैं जिस रेट पे बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, राइट. इसके अलावा जो कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ हैं, जैसे कि जू प्लैंक्टन की बात करें, तो ये प्राइमरी कंज्यूम है आपका एक्वेटिक फूड चेन का. ये एल्गी पे फीड करते हैं और फिर इनको बिगर एनिमल्स खाते हैं. Number 3, sample of living forms. Protozoa are used as research material to study various biological functions such as cell division and reproduction. इनको as a research material यूज़ किया जाता है कुछ biological functions को study करने के लिए, जैसे कि cell division है या reproduction है. Harmful actions of protozoa. अब देखिए किस तरह से harmful है. Many protozoa are parasitic. They live in the body of humans and other animals and cause disease. For example, Entamoeba and Giardia cause dysentery. Plasmodium causes malaria and Trypanosoma causes sleeping sickness.
ज़्यादातर प्रोटोजोआ ना पैरासिटिक होते हैं, इनकी वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे एंट अमीबा, और अगर हम कार्डिया की बात करें इसकी वजह से डिसेंट्री होता है, जबकि प्लास्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, एंड ट्रैपेसोना की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। 2.8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिसीजेस. Any microorganism that is capable of causing diseases is called a pathogen. Therefore, disease-causing microorganisms are called pathogenic microorganisms. Some microorganisms upset digestive process while others produce poisons called toxins which disturb normal body functions. Still others like tuberculosis bacteria destroy body tissues. Microbes spread from an infected person to a healthy person and make him ill. We say that the disease is communicated. Microbial disease, which can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact, are known as communicable diseases. For example, cholera, common cold and chickenpox are communicable diseases. देखिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से बीमारी होती है उसे हम कहते हैं पैथोजन, यानी कि जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा जाता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को अपसेट कर देते हैं, जबकि कुछ पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहते हैं टॉक्सिन्स, जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जैसे लाइक ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये बॉडी टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो माइक्रोब जो है ना वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आपके फैल जाते हैं, राइट. तो ये जो डिसीज़ होती है मतलब ये हम इसे कहते हैं कम्युनिकेटेड या कम्युनिकेबल डिसीज़. तो माइक्रोबियल डिसीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू या फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, राइट. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस. Microorganisms and viruses travel from one person to another or from one object to another on their own. They need a means of transportation and are mainly transmitted in the following manner. Number 1, through air. Airborne infections are caused by pathogenic organisms which are carried through the air by dust or droplets. Any person suffering from flu or common cold during sneezing sprays droplets of moisture contain thousands of common cold viruses. When the moisture evaporates, the microbes cling to dust particles in the air. Then these enter the body of another person during respiration. Some common airborne diseases are cold, flu, whooping cough, diphtheria, tuberculosis and measles. अच्छा देखिए, जो बीमारियाँ ना कैसे फैलती हैं, सबसे पहले तो एयर के थ्रू. तो ये क्या कहते हैं, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं आपके, ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको एयर कैरी करती है डस्ट से या ड्रॉपलेट से. जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे उसको कॉमन कोल्ड है फॉर एग्जांपल, उसने स्नीज किया, ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स है ना वो क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है मॉइस्चर के, जिसमें 1000 ऑफ कॉमन कोल्ड वायरसेस हैं. तो ये जो मॉइस्चर जब इवेपोरेट होगा, माइक्रोब जो है वो डस्ट पार्टिकल जो एयर में आपके क्लिंग हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर करेंगे जब वो रिस्पायर करेगा. तो ऐसे कुछ एयरबॉर्न डिसीज में आते हैं आपके, जैसे कि cold, flu, whooping cough, diphtheria, tuberculosis and measles. Number 2, through food and water. Various disease-causing microbes are found in polluted food and water, infected utensils, and hence also lead to transmission of diseases. Some food and waterborne diseases are cholera, dysentery, typhoid, polio, and amoebiasis. अच्छा, अब बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत सारी बीमारियाँ कॉज करते हैं पोल्यूटेड फूड और वाटर में, है ना. कई बार जो इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स होते हैं या हैंड्स हैं, उनकी वजह से भी डिसीज़ का ट्रांसमिशन हो जाता है. तो कुछ फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेज आपकी हैं लाइक दीज. Number 3, through contact. Most of the skin and genital diseases spread through contact. Using common towels, handkerchief, comb, blankets and clothes help in the transmission of the microbes. For example, ringworm, scabies and conjunctivitis spread through contact. तो देखिए, जैसे कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर डायरेक्टली आप किसी का इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल या हैंकरचीफ, कॉम, ब्लैंकेट या क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे माइक्रोब्स ट्रांसमिट हो जाते हैं. जैसे कि आपकी ये जो सारी बीमारियाँ ये कॉन्टैक्ट के थ्रू ही स्प्रेड होती है. रिंगवॉर्म, स्केबीज एंड कंजक्टिवाइटिस. Number 4, through carriers or vectors. Vectors are animals or insects that carry pathogenic organisms from one host to another. The housefly is the most common carrier.
Microbes from garbage and animal excreta are easily stuck to its fine area of body hair and are transferred to food and other articles. Anopheles mosquitoes carry malaria-causing microorganisms, Plasmodium internally, and transmit them through bites. अच्छा, वैक्टर्स आपके क्या होते हैं? एनिमल्स या इंसेक्ट होते हैं जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं, यानी एक कैरियर होते हैं. इसमें मोस्ट कॉमन कैरियर है आपका हाउस फ्लाई, है ना. तो जो माइक्रोब्स आपके गार्बेज में या एनिमल्स एक्सक्रीटा में होते हैं ना, इनकी बॉडी से ये बॉडी हेयर में स्टिक हो जाते हैं और फिर ये फूड या दूसरे आर्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. एनाफिलीज मस्कीटो जो है आपका फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, ये मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है, जबकि प्लाज्मोडियम इंटरनली ट्रांसमिट करता है इनको बाइट्स के थ्रू. टेबल 2.2 सम कॉमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अच्छा देखिए, आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको डिसीजेस दी गई हैं एंड ये डिसीजेस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है और ट्रांसमिशन कैसे होता है, ईदर बाय एयर और कॉन्टैक्ट, फूड और वाटर, राइट. और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब जनरल कि आप किस तरह से प्रिकॉशंस रख सकते हैं. ओके, सो यू ऑल हैव टू गो थ्रू दिस टेबल. नेक्स्ट, amoebiasis, amoebic dysentery. Amoebiasis is a very common stomach disorder in India. It is caused by a protozoan called Entamoeba histolytica. The symptoms of disease vary from simple stomach discomfort to severe dysentery with mucus and traces of blood. Sometimes it may take days or even months before the symptoms show up in the form of loose motions, alternating with constipation. But on examining the stool of an infected person under a microscope, cysts and active amoeba are seen which have ingested red blood cells. The disease is transmitted through food and water contaminated with mature cysts of the protozoa. ये जो अमीबाइसिस है ना आपका, एक कॉमन स्टमक डिसऑर्डर है इंडिया में और ये एक प्रोटोजोन की से होता है जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका. तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब एक सिंपल सा स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा या फिर उसके सीवियर डिसेंट्री हो सकता है जिसमें आपके म्यूकस और ब्लड के ट्रेसेस भी आते हैं. कई बार कुछ दिन लगते हैं इसको ठीक होने पे, कई बार महीनों लग जाते हैं, राइट. इसके बाद आपके जो सिम्टम्स हैं वो शो अप होते हैं लूज मोशन की फॉर्म में, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है. तो जब एग्जामाइन किया जाएगा किसी पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल, तो सिस्ट और जो एक्टिव अमीबा वो नज़र आएंगे, राइट. तो जो डिसीज़ है वो ट्रांसमिट होती है फूड एंड वाटर के थ्रू जो कंटामिनेटेड होता है, ठीक है, जिसमें आपके मेच्योर सिस्ट होते हैं किसके, प्रोटोजोआ के. To prevent transmission of amoebiasis, open defecation should be discouraged. Proper sanitation and personal hygiene are therefore extremely important in controlling this disease. Person infected with chronic amoebiasis should be isolated and treated properly. All raw vegetables and fruits should be thoroughly washed before use, as cysts are often picked up from exposed facus by flies and other organisms and deposited on them. तो देखिए, अमीबाइसिस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ओपन डेफिकेशन नहीं करना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए. ओके, प्रॉपर सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए. जितने भी रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उनको थॉरली वॉश करना चाहिए. ओके, प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट माइक्रोबल डिसीजेस. Following precautions should be taken to prevent infection by microbes. Number 1, we should keep our surroundings clean and control the breeding and growth of insect. Number 2, we should stay away from an infected person suffering from a communicable disease. Number 3, the articles used by a diseased person should not be used by others. Number 4, water and milk should be boiled before use to check the growth of microbes. Number 5, we should not consume uncovered food which may be contaminated by dust, flies, cockroaches, etc. Number 6, food should be properly cooked and consumed when fresh. Extra food should be kept in the refrigerator to prevent microbial growth. Number 7, for immunization against a prevalent disease, vaccines specially prepared for specific diseases should be injected. तो देखिए, माइक्रोबियल डिसीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट की वहाँ पे ब्रीडिंग ना हो सके.
इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए। ओके किसी भी डिसीज पर्सन के जो आर्टिकल्स हैं उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका सामान यूज़ नहीं करना चाहिए। वाटर एंड मिल्क को अच्छे से बॉईल करना चाहिए, राइट। हमें कोई भी अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, फूड को प्रॉपर्ली कुक करना चाहिए और तभी कंज्यूम करना चाहिए जब वो फ्रेश हो। स्टील फूड नहीं खाना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा फूड बाई चांस बच भी जाता है उसे रेफ्रिजरेट कर दें जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें ना हो। और कोई भी प्रेवलेंट डिसीज़ है उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करना चाहिए, यानी वैक्सीन्स लेनी चाहिए। 2.9 मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The metabolic products of one microorganism which kill or stop the growth of some other microorganisms are called antibiotics. Antimicrobial. So well-known antibiotics are penicillin, streptomycin, tetracycline and gramicidin. These are now widely used to cure many microbial diseases. Penicillin is made from a fungus called Penicillium notatum. It was discovered by Dr. Alexander Fleming in 1921. देखिए जो metabolic products होते हैं एक organism के, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप या किल करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो कुछ वेल नोन एंटीबायोटिक्स हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि है आपका पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ग्रामिसाइडिन। ओके तो बहुत सारी माइक्रोबियल डिसीज़ को क्योर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और जो पेनिसिलिन है ये आपका एक फंगस से बना होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। 2.10 commercial uses of microorganisms. Microorganisms produce a specific kind of substances. Some of the substances are so useful that they are produced with the help of microorganisms on commercial or large scale. Number 1, production of antibiotics and vaccines. Antibiotics and vaccines are made from the various fungi and bacteria. Number 2, alcohol and wines. Yeast breaks down the carbohydrate molecules into alcohol and carbon dioxide. The mixture is called wine, while alcohol is a distilled form of wine. देखिए एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन जो आपके बहुत सारे फंगी या बैक्टीरिया से बनते हैं, इसी तरह से जो यीस्ट है आपका वो आपकी अल्कोहल एंड वाइन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नंबर 3, विनेगर एंड एसिटिक एसिड. Vinegar is obtained by fermenting sugarcane juice. The natural bacteria present in sugarcane juice grow and produce vinegar. Acetic acid is distilled form of vinegar. Acetic acid is also made from alcohol by the action of bacteria Acetobacter aceti. विनेगर जो है शुगर केन जूस के फर्मेंटेशन से मिलता है, राइट। तो जो नेचुरल बैक्टीरिया शुगर केन जूस में प्रेजेंट होता है वो ग्रो करता है, विनेगर प्रोड्यूस करता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो डिस्टिल्ड फॉर्म है विनेगर का, और एसिटिक एसिड को अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच इज एसिटोबैक्टर एसिटी। Bakery and dairy products, breads, cakes, pastries, etc. are produced with the help of yeast. You know that very well. Curd and cheese are made with the help of lactobacillus, which you have learnt earlier. Number 5, genetic engineering. Designing new cells having special properties is called genetic engineering. Scientists have succeeded in making new bacteria which serve special purposes. For example, bacteria that feed on petroleum oil are used to clean oil spills from tankers, or the ones which can make life-saving drugs such as insulin. Scientists are trying to improve the nitrogen-fixing capacity of nitrogen-fixing bacteria, Rhizobium and legumes, so as to increase the yield of plants to meet our growing protein requirements. अच्छा देखिए, जैसे न्यू सेल्स को डिज़ाइन किया जाता है जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो साइंटिस्ट ने जैसे न्यू बैक्टीरियाज बनाए जो कुछ स्पेशल पर्पस को सर्व करते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया पेट्रोलियम ऑयल पे फीड करते हैं तो उनको यूज़ किया जाता है। जैसे जो ऑयल स्पिल हो जाता है ना टैंकर से आपके ओशन में या सी में, तो उसको वो खा जाते हैं, राइट, उस पर फीड करते हैं। इसके अलावा कुछ को यूज़ किया जाता है इंसुलिन बनाने के लिए, राइट। इसके अलावा जो साइंटिस्ट है ना वो ट्राई कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम की, उसको वो इंक्रीज कर सके। 2.11 Other uses of microorganisms. Microorganisms are effectively used for sewage treatment. Species of Bacillus, Pseudomonas and Proteus are used for this purpose. These bacteria are circulated in the sewer in large tanks through which air is pumped. In the presence of sufficient oxygen, the bacteria bring about rapid decomposition of sewage in a few hours. Undigested sewer is then transferred
to anaerobic digestion tank, while aerobic bacteria stay behind. Here, anaerobic bacteria carry out rapid digestion and produce gases like methane. The mixture of gases so produced is the biogas, which is used as a fuel. The sludge left after digestion of seawater is rich in nitrogen and is used as manure after drying. देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके स्विच ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे जो कुछ स्पीशीज़ हैं बैसिलस की, सूडोमोनास की एंड प्रोटियस की, उसको इन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. इन बैक्टीरिया को सर्कुलेट किया जाता है सीवर में, लार्ज टैंक्स में, मतलब जो एयर पंप की जाती है उसके थ्रू. फिर सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया हैं ये रैपिड डिकम्पोजिशन करते हैं स्विच का कुछ ही घंटों में, है ना. तो जो अनडाइजेस्टेड सीवर होता है उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है एनारोबिक डाइजेशन टैंक में, जबकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो रह जाता है. अब यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो रैपिड डाइजेशन कैरी आउट करता है और गैसेस प्रोड्यूस करता है जैसे कि मीथेन. फिर ये जो मिक्सचर होता है गैसेस का जो बना है वो आपका होता है बायोगैस, जो एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. और जो स्लज आपका डाइजेशन के बाद बच जाता है सीवर के, वो रिच इन नाइट्रोजन होता है और फिर एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है ड्राई करने के बाद. फूड कंटामिनेशन. The microbes that damage food are mostly bacteria and fungi. If food is contaminated with a small number of bacteria and you leave it out of the fridge overnight, it could be seriously contaminated by the next day, as bacteria need warmth and moisture to grow. In the right conditions, one bacterium could become several millions in 8 hours and thousands of millions in 12 hours. They make food poisonous compounds, toxins, which when consumed make us ill. This is called food poisoning. Sometimes you may contract a disease long after you have consumed food infected with germs. This is because germs take some time to grow and give rise to the disease in your body. The gap of time between the entry of germs into the body and appearance of symptoms of the disease is called the incubation period, which is different for different diseases. During this period, the person may remain perfectly healthy. अच्छा देखिए, आपको पता है माइक्रोब्स की से माइक्रोब जो है हमारे फूड को डैमेज कर देते हैं और इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है अगर हम ऐसा स्पॉइल्ड फूड खाएंगे तो, राइट. अच्छा, कोई बार क्या होता है कि जैसे कि हमें जैसे कोई डिसीज़ से हम कॉन्ट्रैक्ट हो गए लेकिन उसके सिम्टम्स काफ़ी टाइम बाद आते हैं. मतलब जैसे हमने कोई इन्फेक्टेड खाना खाया, ठीक है, और उसके बाद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जर्म्स को ग्रो करने में टाइम लगता है. ओके, तो जो गैप ऑफ टाइम होता है ना, मतलब जर्म्स ने जब एंट्री की फिर उसके सिम्टम्स अपीयर हुए, दैट पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड, जो डिफरेंट डिसीज का डिफरेंट होता है. और इस पीरियड में क्या होता है, पर्सन एकदम परफेक्टली हेल्दी दिखता है. 2.12 स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. Microorganisms grow easily on food, paper, cloth, timber or leather in warm, not hot, and moist atmosphere. Drying in the sun is an old method of preserving clothes and food material. Some other methods of protecting materials from the attack of microorganisms are as follows. Number 1, chemical method. Treating with insecticides and fungicides. Wood, leather, textile, paper and grain are treated with chemicals to prevent the growth of microbes. That is why we keep naphthalene balls in woolen clothes. Use of preservatives, animal acids and salts. Acids and salts inhibit microbial growth. Acids inactivate enzyme actions of the microbes and thus prevent food from getting spoiled. Acidic preservatives such as sodium benzoate or sodium metasulfite are added to jams and squashes. Salts inactivate the microbe cells by drawing water from their cells. That is why adequate amount of common salt is added to pickles. अच्छा देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए हमारे फूड, पेपर, क्लोथ को इजीली उस पर ग्रो कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना. तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, ओल्डेस्ट मेथड क्या है कि इनको धूप में रखा जाता है, सन, है ना. बाकी कुछ और मेथड्स हैं मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें आपके केमिकल मेथड्स में आता है जैसे कि इंसेक्टिसाइड या फंजाइसाइड का हम यूज़ करते हैं, राइट. आपने देखा होगा कि हम वुलन क्लोथ्स में नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं, है ना. या फिर जैसे कि कुछ एडिबल एसिड या सॉल्ट्स का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एसिड और सॉल्ट क्या करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देते, राइट. इसके अलावा जैसे आपका एक सोडियम बेंजोइट है या आपका सोडियम मेटासल्फाइड, ये आपके क्या है, एसिडिक प्रेजर्वेटिव्स हैं. इनको यूज़ किया जाता है जैम्स में या स्क्वैशेस में. आप कभी भी देखना, जैम्स की बॉटल होगी या कोई भी आपका फ्रूट जूस का बॉटल होगा, स्क्वैशेस का बॉटल होगा, उसमें इंग्रेडिएंट्स में जब आप देखेंगे तो सोडियम बेंजोइट आपको ज़रूर मिलेगा. सॉल्ट जो है वो भी माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है. इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे
पिकल, अचार जो होता है ना, क्योंकि हमें उसे लंबे समय तक चलाना होता है तो उसमें हम सॉल्ट डालते हैं थोड़ा ज़्यादा. Number 2, heat and cold treatment. Number 1, freezing. Perishable food items like fruits, vegetables, meat and fish can be stored at low temperature. Food can be kept in refrigerator or cold storage. Low temperature prevents the food from getting spoiled because microbes do not multiply and the enzymes become inactive in low temperature. Number 2, low temperature. Low temperature inactivate the enzymes present in microorganisms so that they are unable to break down food and spoil it. Low temperatures also inhibit the growth of cells. Therefore, food is kept in fridge to prevent from spoiling. जो आपके पैरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल है, मीट फिश, इनको लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है. इसीलिए हम इनको क्या रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, माइक्रोब जो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते. ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर उनके एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं. तो लो टेम्परेचर एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए वो फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, इसलिए वो स्पॉइल नहीं हो पाता है. पाश्चराइजेशन. French chemist Louis Pasteur discovered that bacteria cause food decay. He developed a method of preserving food called pasteurization in his honor. Louis Pasteur ने एक मेथड डिस्कवर किया था which is known as pasteurization. This process is most commonly applied to milk. In this process, milk is first heated to 70 degrees Celsius and this temperature is maintained for a short time, 15 seconds, and then suddenly chilled. Most of the active microbes are killed and souring of milk is prevented. अब देखिए पाश्चराइजेशन का यूज़ हम करते हैं मिल्क में. इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में मिल्क को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है ना, बट ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ओनली 15 सेकेंड्स, और फिर उसको सडनली ना चिल कर दिया जाता है. तो जो भी आपके ज़्यादातर एक्टिव माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, राइट. कुकिंग विदाउट वाटर. Cooking without water preserves food for more time. Pickling of vegetables and fruits is essentially a process of cooking them in oil using heat from the sun or in the oven. Roasting and frying also help to maintain the quality of food. Radiation. Food is also preserved by exposing it to radiations which destroy different kinds of microbes in the food. अच्छा देखिए, cooking without water. विदाउट वाटर अगर कुकिंग करेंगे तो ये खाना ज़्यादा टाइम तक के लिए प्रिजर्व रह सकते हैं. जैसे हम वेजिटेबल का अचार डालते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, हम इसमें सन की हीट यूज़ करते हैं या फिर अवन की हीट का यूज़ करते हैं. रोस्टिंग एंड फ्राइंग, ये भी फूड की क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है लंबे समय तक. इसके अलावा फूड को हम रेडिएशन से भी प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब रेडिएशन में इसको एक्सपोज किया जाता है तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Key points. The branch of science that deals with the study of microorganisms is called microbiology. Microorganisms are found in air, water, soil, plants and animals. In order of gradual evolution in body organization, there are 5 major groups of microorganisms: viruses, bacteria, fungi, algae and protozoa. A virus is a biological agent that produce inside the living cells of the organism. Bacteria are unicellular organisms and may be coccus, bacillus, spirillum and vibrio in shape. Fungi are plants which lack chlorophyll. Algae are green, non-flowering plants which may be unicellular or multicellular. Protozoa are unicellular animals. Microbes spread diseases through air, water, food, direct contact and carriers. The metabolic products of one microbe which kill or stop the growth of some other microbes are called antibiotics or antimicrobial. Microorganisms are used commercially in the production of antibiotics, alcohol, vinegar, bakery and dairy products and genetic engineering. The most common bacteria used for scientific research is E. coli. Remember that. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.